Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Today we will learn about the natural resources and lesson number 16. Let's recall. Let's recall. See the first question. What is meant by natural resources? What is meant by the natural resources? So those substances which are obtained from the nature are called as the natural resources. For example, water. For example, soil. For example, forest, hills, all are the natural resources. Give some example of the natural resources. Some example of the natural resources. The natural resources are air, water, hills, soil, animals, etc. So all are these example of the natural resources. We get many substances from nature. They satisfy a variety of our daily needs. Soil, stones, mineral, air, water, plants and animals on the earth are all various kind of the natural resources. Now see, the substance which are obtained from the nature called as the natural resources, and the example of natural resources are soil, stones, minerals, air, water, plants and animals. Natural resources in earth crust. Natural resources in अर्थ क्रस्ट. अब अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस है दैट वी हैव टू सी. अर्थ लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ लैंड एंड हार्ड क्रस्ट बीनीथ इट. जो अर्थ का लिथोस्फीयर है. नाउ सी, लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स व्हाट? द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड एटमॉस्फेयर is the upper covering of the earth by the air or mixture of the gases is called atmosphere. तो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर कहाँ पे है? अर्थ के ऊपर, और इट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस, एंड लिथोस्फीयर इज नथिंग बट द सॉइल, द लैंड. ये क्या है? लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ लैंड एंड हार्ड क्रस्ट बीनीथ इट. तो लिथोस्फीयर किससे बना है? लैंड से, जमीन से, एंड हार्ड क्रस्ट जो उसके नीचे प्रेजेंट है, बीनीथ इट. द लिथोस्फीयर इज नॉट homogeneous but is made up of many types of the rocks. Lithosphere is not homogeneous but it is made up of what? Many types of the rocks, different types of the rocks. Resources in the earth crust include minerals, ores, mineral oil and other fuels, rocks, water, elements, etc. अब जो अर्थ क्रस्ट से मिलने वाला जो resources है, what are that resources? So that resources are the minerals, minerals like salts, ores, mineral oil. Mineral oil means the crude oil from which the diesel, petrol and kerosene are obtained, and other fuels like the natural gases, ethane, propane, butane, etc. Rocks, different type of the rocks which are used to make the different articles. Water, underground water, and elements, and different type of the element. For example, gold, silver, copper, they are present in the earth crust in the form of the element. Mineral and ores. Mineral and ores. अब minerals क्या है और ores क्या है, that we have to see. Mineral wealth has an important place among natural resources. मिनरल वेल्थ, वेल्थ मीन्स व्हाट? खजाना. तो जो मिनरल का वेल्थ हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में जो मिनरल का खजाना है वो इम्पॉर्टेंट प्लेस है नेचुरल रिसोर्सेज में. मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय वेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट. द मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय द वेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट
टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसकी वजह से क्या बनता है, मिनरल्स बनता है। द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ मिनरल। जो रॉक्स है अर्थ के वो मिनरल से बने हुए हैं। These minerals can be obtained by mining। अब इस मिनरल्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, माइनिंग करके, उसको खोद करके निकालते हैं। Only a few metals like for example gold, silver, copper, platinum and bismuth occur in the free state in the nature। सिर्फ कुछ मेटल, only few metal such as gold, silver, copper, platinum, bismuth occur in free state। ये फ्री स्टेट में मिलता है। सॉइल के साथ में क्या है, ये फ्री स्टेट में मिलता है, मीन्स इट इज नॉट फाउंड इन द कंपाउंड स्टेट। कंपाउंड फॉर्म में नहीं मिलता है, फ्री फॉर्म में मिलता है। ए मेजोरिटी ऑफ द मेटल ऑकर इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। जबकि दूसरे जो क्या है मेटल्स लाइक आयरन विच इज़ वेरी रिएक्टिव, विच इज़ यस एल्यूमिनियम विच इज़ मोर रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। तो एल्यूमिनियम एंड आयरन these metals are found in the soil in the form of the compound। ये कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते। बट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर दे आर लिस्ट रिएक्टिव मेटल, दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। तो ओनली वी हैव टू सेपरेट द सॉइल सैंड टू extract the gold and silver, but to extract the iron aluminum we have to first separate the impurities like sand, soil, silica, and then we have to separate the other elements too। A majority of metal occur in the form of compound minerals that contain a high proportion of the metals are called ores। Now yes, you have to understand the difference between the mineral and ore। मिनरल एंड और दोनों में डिफरेंसेस हम लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। सपोज यस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट मिनरल्स। अब एल्यूमिनियम या वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द आयरन, Fe। Fe मीन्स आयरन एंड आयरन मीन्स व्हाट, लोहा। हम क्या बोलते हैं उसको, लोहा। लोहे को ही क्या बोला जाता है, इस आयरन। तो उसका सिंबल है Fe। लोहे का सिंबल क्या है, Fe। नाउ यस दिस इज रिएक्टिव मेटल, दिस इज फाउंड इन द डिफरेंट फॉर्म्स Fe2O3 and along with that there is silica and other impurities। So here to obtain the pure Fe obtain करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, फर्स्ट वी हैव टू सेपरेट द सिलिका, फर्स्ट वी हैव टू सेपरेट द सिलिका एंड सैंड। सिलिका और सैंड को क्या करना पड़ता है, पहले सेपरेट करना पड़ता है। देन वी हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट विद द Fe। ये जो दिख रहा है हम लोगों को, इसको हमको सेपरेट करना पड़ता है बाय डूइंग द केमिकल रिएक्शंस करके। बट जो आयरन है ये ओनली इसी फॉर्म में नहीं मिलता, ये क्या है और भी इसके मिनरल्स है जिससे वो ऑब्टेन्ड होता है। बट नाउ yes there are the 3 to 4 minerals from which the iron can be obtained, means there are 4 to 5 compounds of the iron, but the percentage of the iron is different in the different minerals, then the minerals in which the percentage of the iron is more, that will be called as the ore of the iron। अब यहाँ पे सपोज 5 to 6 कंपाउंड से किसका, आयरन का, जिससे हम लोग आयरन क्या है ऑब्टेन कर सकते, उनसे हम ऑब्टेन कर सकते आयरन। बट जिस मिनरल से हमको ज़्यादा परसेंटेज आयरन का मिलेगा और हम कन्वीनियंटली आसानी से उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते, उसमें से निकाल सकते, तो दैट मिनरल विल बी कॉल्ड एज द ओर्स। तो ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल। तो रिमेंबर दिस,
तो वो ऐसा मिनरल जिसमें से कोई भी मेटल लार्ज प्रोपोर्शन में मिलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, तो उसी मिनरल को उसका क्या बोलते हैं, ओर। फॉर एग्जांपल द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज एल्यूमिना Al2O3 डॉट SiO2 सिलिका। अब देखो ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जब नेचर से हम क्या करते हैं, निकालते हैं, उस टाइम सॉइल से जब निकालते हैं तो वो इस फॉर्म में रहता है Al2O3 डॉट SiO2 सिलिका। और क्या है, उसके साथ में सॉइल और सैंड प्रेजेंट रहता है। तो नाउ जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ क्या है, सिलिका एंड सैंड। तो सिलिका एंड सैंड पहले रिमूव करते, देन ऑक्सीजन इज रिमूव। इसका नाम जो है ये बॉक्साइड है। क्या नाम है, बॉक्साइड। ये एल्यूमिनियम और भी नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, डिफरेंट कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, बट जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म से एल्यूमिनियम का अमाउंट या परसेंटेज ज़्यादा मिलता है। तो दैट्स वाई दिस इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये क्या है, एल्यूमिनियम का ओर है। और अदर्स आर विल कॉल्ड एज द ओनली मिनरल्स। अब मिनरल क्या है, वट एवर थिंग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, वट एवर थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, जमीन से मिलने वाली कोई भी चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल। अब देखो अगर हम डीजल पेट्रोल ज़मीन से निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल ऑयल। अब जो हमारे घरों में जो लादी लगती है या मार्बल्स लगता है, वो मार्बल्स कहाँ से मिलता है हम लोगों को, ज़मीन को डिग आउट करके या पहाड़ को तोड़ करके हम लोग उसको कट करके उसको रेक्टेंगुलर शेप देते हैं हम लोग। तो ये जो है रेक्टेंगुलर शेप जो देते हैं वो किससे मिला, ज़मीन से मिला है। तो ये जो ज़मीन से मिला उसको भी हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो जो भी चीज़ें हमको ज़मीन के अंदर से मिलती है, अर्थ के क्रस्ट से मिलती है, अब जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है हम लोगों को, ज़मीन के अंदर से। तो ज़मीन से मिलने वाली हर एक चीज़ को क्या बोलते हैं, मिनरल। और ऐसे मिनरल्स जिसमें किसी मेटल का प्रपोर्शन ज़्यादा हो, तो वैसे मिनरल को उस मेटल का और बोलते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने समझाया कि जो बॉक्साइड है Al2O3, इस कंपाउंड में एल्युमिनियम का परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम का ओर। It is economical to obtain the metal from the ores. It is economical. अब ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है। बिकॉज प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए लॉट ऑफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं एंड इट कंज्यूम द टाइम ऑल्सो। तो जो क्या है, ओर से अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को निकालते हैं, तो क्या पड़ता है, वो चीपर होता है और इजी होता है। The properties of mineral become clear from their characteristic color, luster, hardness, shape and cleavage or fracture and streak। अब जो मिनरल की जो प्रॉपर्टी है, ये उसके कलर से, उसके लस्टर, लस्टर मीन्स शाइन, एंड हार्डनेस, कितना वो हार्ड है, और उसका शेप, लेंथ कितना है, उसके बेस पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल जाता है। हाउ आर द मिनरल्स फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड, मिनरल्स बनते कैसे हैं अर्थ क्रस्ट में, ज़मीन के अंदर कैसे बनते हैं। अब देखो जहाँ से मिनरल ऑब्टेन करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, माइंस। क्या बोला जाता है उसको, माइन बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, खादान। क्या बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे ये फिगर 16.1, माइनिंग। माइनिंग वो प्लेस होती है जहाँ से कोई पर्टिकुलर टाइप के ओर्स को डिग आउट करके ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। जैसे कि कोयला। अब देखो यहाँ कोयला जो होता है, जहाँ से कोयला निकाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोल माइन। अब ये कोयला कहाँ से निकाला जाता है, ज़मीन को डिग आउट करके, ज़मीन को खोद करके। बिकॉज क्या होता है, ये जो कोल होते हैं वो ज़मीन के अंदर उड़ के बरी होने से वो उसका फॉर्मेशन हुआ है।
तो ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं? माइन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? खदान। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो माइन है उस माइन से ये मटेरियल आ रहा है और ट्रॉली के थ्रू। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये माइन से इस ट्रक में क्या हो रही? लोडिंग। तो स्पेशली जो कोल वगैरह होता है, कोयला, वो हम देखेंगे कि जहाँ पे माइनिंग होती है तो इस तरह से इस मशीनों के थ्रू ट्रक में लोड करके उसके ये क्या है? रिक्वायर्ड प्लेस पे पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड? मिनरल कैसे फॉर्मेशन होता है या कैसे बनता है? Minerals are formed from the magma in the earth crust and lava from the eruption of the volcanoes when they cool and get transformed into the crystals. अब क्या बोला है? ये मैग्नेटाइट और माइका, मैग्नेटाइट एंड माइका, ये ओर का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो अब क्या है? ये दिस मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा इन द अर्थ। अब अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मैग्मा है, एंड लावा फ्रॉम द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो, जो लावा निकलता है वोल्केनिक इरप्शन से, उन दोनों के मिक्स होने से मैग्नेटाइट और माइका का फॉर्मेशन होता है। व्हेन दे कूल एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द क्रिस्टल, और जब वो क्या होते? ठंडा होकर और क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते, देन वी गेट द मैग्नेटाइट एंड माइका। नाउ नेक्स्ट मिनरल, हेलाइट एंड जिप्सम। हेलाइट एंड जिप्सम। अब ये जो जिप्सम है ये भी अर्थ से ही मिलता है, और ये जिप्सम का यूज़ किसके लिए होता है? पीओपी के फॉर्म में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। अब हम अपने घरों को कलर करने के पहले उसको क्या करते? पीओपी लगाते हैं। तो जो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या किया जाता है? प्लास्टर किया जाता है। तो वहाँ पे पीओपी का इस्तेमाल होता है, और ये किसका पार्ट है? ये जिप्सम से बना हुआ रहता है। Minerals are formed when the solid crystals remain behind after the process of evaporation. अब क्या बताया है? Minerals are formed when solid crystal remain behind after the process of evaporation. अब अगर इवोपरेशन हो जाए कोई लिक्विड का, और उसमें जो डिज़ोल्व फॉर्म में जो थिंग्स प्रेजेंट है वो सॉलिडिफाई होते हैं इवोपरेशन प्रोसेस के बाद, तो इस तरह से भी क्या है? मिनरल फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? मिनरल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द सॉलिड क्रिस्टल रिमेन बिहाइंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जब इवोपरेशन का प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम सी वाटर लेते हैं, समुद्र का पानी लेते हैं, और समुद्र का पानी लेकर हम उसको सन के हीट में रखते हैं, तो व्हाट हैपेंस? द वाटर इवोपरेट्स। जो पानी है वो इवोपरेट हो जाता है, वेपर बनकर चले जाता है गैसियस स्टेट में और डिसअपियर हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चले जाता है, एंड द सॉल्ट रिमेन बिहाइंड। और सॉल्ट क्या हो जाता है? उस बाउल में, उस जगह पे रह जाता है। जो सॉल्ट पेन होते हैं, सॉल्ट पेन्स, जहाँ पे सॉल्ट की खेती भी हम बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है? ये जो सी वाटर है, जब हाई टाइड आता है उस टाइम सी वाटर उस फॉर्म्स में, सॉल्ट फॉर्म्स जो होते हैं वो खेतों में फैल जाता है, और उसके बाद में उसके बॉर्डर को बंद कर दिया जाता है। तो वाटर बिकॉज ऑफ सन्स हीट इवोपरेट, एंड ओनली द salts लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर इवोपरेशन ऑफ द वाटर। तो इन सेम वे, उसी तरीके से इवोपरेशन प्रोसेस से ये हैलाइट और जिप्सम जो है इस टाइप के मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। Minerals get transferred from one form into the another due to the large changes in temperature and pressure. Minerals are transformed from one form to another due to the large changes in temperature and pressure. अब ऐसे भी कुछ मिनरल है जो वन फॉर्म के मिनरल से दूसरे फॉर्म के मिनरल में टर्न हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। एज वी नो दैट द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज वेरी हाई। Its temperature at the center of earth is about 6000 degree Celsius. कितना है? 6000 degree Celsius. तो as we move from the earth surface to inner surface of the earth, the temperature increases, rises, बढ़ते जाता है वो टेम्परेचर। तो वैसे ही जो एक टाइप के मिनरल है वो दूसरे टाइप के मिनरल में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। अब प्रेशर कहाँ से डेवलप होगा?
Yes, pressures are developed because of the loads विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो अर्थ के ऊपर जो रॉक के लेयर्स है, उस लेयर के वेट की वजह से, उसके वेट की वजह से क्या होता है, प्रेशर भी डेवलप होता है और इसकी वजह से कुछ बहुत ही हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड, ये जो डायमंड है इस टाइप का जो मिनरल फॉर्म हुआ है, ये किसकी वजह से फॉर्म हुआ है, वन टाइप के मिनरल का दूसरे फॉर्म में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से कन्वर्जन है। बिकॉज डायमंड इज नथिंग बट इट इज़ द यस कार्बन, ये कार्बन से बना हुआ, बट जो कोल है कार्बन का बना हुआ पार्ट कोल है, इट इज ब्रिटल, बट द डायमंड इज वेरी हार्ड इन नेचर। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट यू नो द अबाउट द ग्रेफाइट, द पेंसिल लीड्स, जो पेंसिल की लीड होती है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्रेफाइट। और जो ड्राई सेल्स होते हैं, जो ड्राई सेल्स में जो सिलेंड्रिकल रॉड में जो ब्लैक कलर का जो एनोड का काम करता है, वो सिलेंड्रिकल शेप का जो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। तो दिस ग्रेफाइट्स आर यूज इन द yes pencil leads, as well as it is good conductor of electricity, that's why it is also used in the yes dry cells. Some living organism produce the inorganic mineral, example shells etc, form for the protection of the body। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो क्या करते हैं, कुछ मिनरल का सिक्रीशन करते हैं और उस सिक्रेशन की वजह से क्या हो जाता, वो लिक्विड से हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता। फॉर एग्जांपल कॉन्चेस एंड शेल्स, यहाँ पे जो सेल्स दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, शीप। जो एस्टर्स होते हैं वो एस्टर से क्या होती है, हमको क्या मिलती है, शेल्स मिलते हैं। तो ये जो सेल्स है ये भी क्या है, ये किसका बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, अब मिनरल का क्लासिफिकेशन उनके प्रॉपर्टी के बेस्ड, नॉन मेटल मिनरल्स, मेटल मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। अभी ऑलरेडी मैंने क्या समझाया कि मिनरल्स क्या होते हैं, वॉट एवर थिंग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड एज द मिनरल। अब जो फूड ग्रेन्स है, फ्रूट है, वो हम लोगों को ज़मीन के अंदर से मिलता है क्या, नहीं, तो वो क्या है, वो मिनरल्स नहीं है। वुड वुड हम लोगों को ज़मीन के अंदर से मिलता है क्या, नहीं, ये क्या है, ये ज़मीन के ऊपर का पार्ट है, तो वो क्या है, वो मिनरल्स नहीं है। बट जो ज़मीन के अंदर से, जैसे जिप्सम हो गया, ओके, एक रॉक हो गया, तो ये सब चीज़ें हमको ज़मीन से मिलती है। डीजल पेट्रोल जो क्रूड ऑयल से मिलता है वो भी ज़मीन के अंदर से मिलती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, मिनरल ऑयल। तो क्या है, ये इसका क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज द नॉन मेटल मिनरल, सेकेंड वन इज द मेटल मिनरल एंड थर्ड वन इज द एनर्जी मिनरल्स। नाउ यस नॉन मेटल मिनरल्स, तो नॉन मेटल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर नॉन मेटल्स एंड they have the property like bad conductor of electricity, not malleable, not having the luster means shining, not hard in nature, found in the solid and gaseous states। ये किस ऐसे मिनरल को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। एंड मेटल मिनरल्स, दोज मिनरल्स विच आर हार्ड इन नेचर, दे आर फाउंड इन द सॉलिड, जो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, और जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, दे आर द yes metal mineral। and those minerals from which we get the diesel, petrol or mineral natural gases, by burning of that minerals we get energy, so such type of the minerals are called as the energy minerals। now see the examples of the non metal minerals, mica, sulfur, gypsum, potash, graphite, diamond, these are the non-metal minerals। Now examples of the metal minerals, iron, gold, silver, tin, bauxite, manganese, platinum, tungsten. So all these are the examples of the metal mineral। Now next examples of the energy minerals, coal। कोल मीन्स कोयला, तो जो कोयला है उसको बर्निंग से क्या मिलता है हमको, यस हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो ये क्या है, यस एनर्जी
मिनरल्स है। नेक्स्ट मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल मीन्स व्हाट? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिससे क्या मिलता है हम लोगों को? डीजल एंड पेट्रोल, कैरोसिन। नेक्स्ट वन इज द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मीन्स इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। So by burning of these gases, the energy is obtained. So that's why they are called as the energy minerals. Now gems and gem-like minerals. अब gems and gems-like mineral, ये जो stones है, precious stones, जिसको हम क्या बोलते हैं? gems. ओके तो ये जेम्स जो है वो भी कहाँ से मिलता है? अर्थ क्रस्ट से। तो दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज द मिनरल। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स लाइक डायमंड, रूबी, सफायर, emerald, zircon are used in as a gems. Gems are in the great demand. अब ये जो जेम्स है इनका डिमांड ज़्यादा होता है। दे आर प्रीसियस बिकॉज दे हैव द शाइन, they have the shine, the internal reflection of the light takes place, that's why they shine. So that's why they have the great demand. They are used in the jewelries. इसको क्या किया जाता है? ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। Do you know deposits of the common salts are also found in the earth? Now what is meant by the common salt? Common salt are that salt that are used in the food. It is NaCl. इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड एंड फार्मूला क्या है? NaCl. तो दिस NaCl इज़ द कॉमन सॉल्ट, जो सॉल्ट हम लोग डेली फूड में ऐड करते हैं वाइल कुकिंग द वेजिटेबल, जो हम सॉल्ट को क्या करते हैं? यूज करते हैं। दैट सॉल्ट इज कॉल्ड एज द कॉमन सॉल्ट एंड उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। एंड व्हाट इज इट्स केमिकल फार्मूला? NaCl. तो दिस कॉमन सॉल्ट आर also फाउंड इन द अर्थ बट वी ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर। ये कहाँ पे मिलते हैं? अर्थ में मिलते हैं, लेकिन हमको कहाँ से मिलता है? सी वाटर से। बिकॉज द सॉल्ट्स आर soluble in water. The salt which are present in the soil, they are dissolved in the rainwater, and rainwater reaches to the sea through the canals, through the rivers, and from many years the salt get accumulated in the sea water, and because of that the sea water becomes salty. And when these waters are evaporated, we get the common salt again from the sea water. तो इसका भी स्टोर कहाँ पे है? सॉइल है ये इसका स्टोर, जहाँ से हम लोगों के कॉमन सॉल्ट मिलता है। नाउ रॉक सॉल्ट जो होता है, ये सॉलिड NaCl, रॉक सॉल्ट। वो रॉक सॉल्ट कहाँ से मिलता है हम लोगों को? हिली एरिया से मिलता है। दिस सॉल्ट इज कॉल्ड एज द रॉक सॉल्ट। अब जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। और ये कहाँ पे मिलता है? जो सिंध का एरिया है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये क्या मिलता है हम लोगों को? रॉक सॉल्ट। इट इज़ यूज इन द फूड एंड इन सम मेडिसिन। अब इस रॉक सॉल्ट का यूज, अभी देखा होगा कि किसी का अगर स्टमक एक होता है तो क्या करते हैं घरों में? रॉक सॉल्ट को लाते हैं और थोड़ा सा उसको च्यू करते हैं, उसको थोड़े टाइम तक माउथ में रख के क्या करते हैं? च्यू करते हैं। और जो पानी पूरी होता है उसके पानी में भी क्या करते हैं? इस रॉक सॉल्ट को ऐड करते हैं, बिकॉज इट हैव द सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। नेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब ये नेशनल इंस्टीट्यूशंस आर दोज इंस्टीट्यूशंस विच वर्क इन द फील्ड ऑफ द मिनरल्स, जो क्या करते हैं? मिनरल के फील्ड में काम करते हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। द इंडियन स्कूल ऑफ माइन। द इंडियन स्कूल ऑफ माइन, माइन मीन्स जहाँ से हम लोग क्या करते हैं? ये जो मिनरल्स को निकालते हैं डिग आउट करके, उस प्लेसेस को क्या बोलते हैं? माइन। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइन धनबाद was founded in 1926 to impart education in the mining. तो 1926 में माइनिंग स्कूल इंडिया में स्टार्ट हुआ था। किसके लिए? ये माइनिंग की एजुकेशन देने के लिए। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? IIT। हम लोग क्या सुनते हैं? IIT,
तो उसका फुल फॉर्म क्या है आईआईटी का? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ यस नेक्स्ट पेज, द सम इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड ओर्स, some important minerals and ores. So now we will study yes about yes 5 different minerals and their uses और उनके क्या क्या uses है. Now see the figure 1. In figure 1 there are the railway track. क्या दिखाई दे रहा है? Railway track. In figure 2 there are the wire, and in figure 3 there are the earthen pots and different vessels made from the china clay. किससे बने हुए दिख रहे हैं उस फिगर में? चाइना क्ले से बने हुए. तो नाउ यस अबाउट द आयरन ओर. द आयरन occurring in the impure state is called the iron ore. Iron ore is used to make the variety of articles from pins to heavy machinery. अब देखो आयरन इज यूज इन द कंस्ट्रक्शंस, ओके, एंड फ्रॉम पिन टू हैवी मशीनरीज. टू कंस्ट्रक्ट द पिंस टू हैवी मशीनरी द आयरन इज यूज्ड. छोटे से पिन से लेकर बड़ी ह्यूज मशीन्स को बनाने के लिए भी क्या यूज होता है? आयरन का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स. अब फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स क्या है? खेती के औजार, जैसे कि क्या है? प्लो, और जो स्पेड, फावड़ा, ये सब चीज़ें किससे बनाई जाती है? आयरन से. रेल्स ऑफ द रेलवे ट्रैक एक्सेट्रा. द फोर मेन्स ओर ऑफ द आयरन आर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट. अब यहाँ पे जो फोर मेन ओर है जिससे हमको क्या मिलता है? आयरन. वो चार मेन ओर्स क्या क्या है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट. ओके, तो रिमेंबर दिस फोर ओर्स ऑफ द आयरन. नाउ नेक्स्ट वन मैग्नीज. नेक्स्ट वन इज द मैग्नीज. तो मैग्नीज ऑकर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कार्बोनेट. जो मैग्नीज है वो नेचर में इम्प्योर स्टेट्स में कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है. मीन्स कार्बोनेट कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है. सिलिकेट, सिलिकेट के भी फॉर्म में वो मिलता है. मीन्स सिलिका इज ऑल्सो प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी विद द मैग्नीज एंड ऑक्साइड. मैग्नीज ऑक्साइड मीन्स MnO2 के फॉर्म में भी वो अवेलेबल है नेचर में. कंपाउंड ऑफ मैग्नीज आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन एंड फॉर गिविंग अ पिंक टीनेज टू द ग्लास. अब ये मैग्नीज जो है उसका यूज मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में होता है, एज वेल एज ग्लास को पिंक कलर देने के लिए भी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है. मैग्नीज इज ऑल्सो यूज इन द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. और इस मैग्नीज का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के फॉर्मेशन में भी होता है. नेक्स्ट वन बॉक्साइट. नेक्स्ट ओर इज बॉक्साइट. अब ये जो नेक्स्ट ओर है बॉक्साइट, फ्रॉम द बॉक्साइट एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड. बॉक्साइट ओर से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम. The bauxite is the most important ore of the aluminium. It contains 55% aluminium. Bauxite consists mainly of the aluminium oxide. Aluminium is very good conductor of electricity and heat. Its density is low. Therefore, it is used mainly in the aeroplane, transport vehicles and to make the electrical wires. जो ये बॉक्साइड ओर से क्या मिलता है हम लोगों को? एल्यूमिनियम. अब एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किसके अंदर होता है? एरोप्लेन के बॉडी के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में. अब जो दूसरे व्हीकल्स है लाइक ट्रक है, रेलवे है, तो उसमें क्या यूज़ होता है? आयरन यूज़ होता है, लोहा यूज़ होता है. बट एरोप्लेन को क्या चाहिए? फ्लाई करने के लिए लाइट वेट चाहिए. तो लाइट वेट के लिए क्या होता है यूज? एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड. Therefore it is used mainly in the aeroplane, transport vehicle and to make the electrical wire. अब आपको वायर के बारे में पता है कि वायर मोस्टली यू फाइंड दैट मेड अप ऑफ द कॉपर एंड aluminium. Now yes student, unmute yourself and if you have any doubt ask to me, then I will end the meeting. अमान, इरशाद शाह, आज़म खान, फ़िज़ा सरदार, मदीहा, शाहिद शेख, उम्मे हबीबा.
What no? Okay, no one having any doubts. Okay, now yes, I am ending the meeting.